مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مرحبا 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 مرحبا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. آج 1448 ہجری کے ماہ میلاد ربیع الاول شریف کی 11ویں شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں. یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تپائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاء اللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام عامر شہزاد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد بھی بندہ جو میلاد کرانا چاہے کرا سکتا ہے. گھر میں جو مطلب عورتیں ہیں ان کا میلاد، اور ان میں کن کن چیزوں کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہاں، سارا سال میلاد شریف کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر اسلامی بہنوں کا جیسا آپ نے فرمایا تو اس میں یہ کہ اسلامی بہنوں کی تو قیودات ہیں. ان کی آواز جو ہے نا، خاص کر وہ بھی ترنم کے ساتھ، یہ یعنی کہ نعت شریف پڑھی جاتی ہے ترنم کے ساتھ اپنی مخصوص لے میں، تو کشش بڑھ جاتی ہے اس سے. تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ نامحرم سنیں. ہاں محرم ہے، جیسے بھائی ہے، باپ ہے، اور بیٹی کی آواز اچھی ہے، بہن کی آواز اچھی ہے، سن رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مائک لگائیں گے تو آواز باہر جائے گی. ایسی کوئی مطلب ساؤنڈ پروف روم بہت مشکل ہے کہ جو مائک کی آواز کو روک لے. عام طور پہ گھروں میں نہیں ہوتا، تو لہذا بغیر مائک کے یہ محفل سجائیں، اور بغیر مائک کے بھی آواز جو غیر محرموں تک نہ پہنچے، یہ خیال رکھیے. اللہ قبول فرمائے. سارا سال کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت، میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ تھا کہ اگر کسی نے نیت کر لی کسی چیز کی تو وہ اگر پوری نہ کر سکے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا نیت کر لی یہ تو وضاحت ہے نہیں. کوئی اچھے کام کی نیت کی تھی کہ میں مثال کے طور پہ اس سال عمرہ کروں گا، اب ایک اس نیت کا ثواب تو اس کو ملے گا. اب اسباب نہیں ہوئے تو بھی ثواب تو اس کا موجود ہے. یا ارادہ ہی بدل گیا کہ آئندہ سال دیکھیں گے، تب بھی یہ نیت کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ نیت کرتے وقت جب 100% ارادہ تھا تو ثواب اس کو مل جائے گا. یہ مثال کے طور پہ دی. کسی برے کام کی نیت کی تو پھر اس کا معاملہ دوسرا ہے. نیک کام کی نیت، اور وہ بھی نیک کام اس کے لیے واقعی نیک کام بھی ہو، کہ بعض نیک کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے نیک نہیں ہوتے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے مدنی مذاکرے میں یہ سوال ہے کہ ہم بھائیوں نے یہ روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہر جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد ہم اپنے والد صاحب کی قبر پر حاضری دیتے ہیں، تو کیا ہمیں وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو کہ حدیث پاک میں والدین کی قبر پر جمعہ والے دن حاضری دینے کی بیان کی گئی ہے؟ مہربانی کر کے جواب عنایت فرما دیں۔ جی ہاں، جمعے کی حاضری کی حدیث شریف میں ترغیب موجود، اور بہتر وقت صبح کا یہ بھی ہے ساتھ میں. تو اگر بہتر وقت میں نہیں دیا اور شام کو دیا تب بھی جمعے کی حاضری تو ہوئی نا، ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کنز العمال میں حدیث پاک بیان کی گئی ہے، جو شخص ہر جمعے کے دن اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورہ یاسین پڑھے تو وہ بخش دیا جائے گا. اچھا، یہاں اس حدیث پاک میں صبح کی بھی قید نہیں ہے، دن میں کسی وقت بھی، اور ساتھ میں یاسین شریف کی البتہ یہاں ترغیب موجود ہے. اچھا، اور اگر یاسین شریف نہیں بھی پڑھتا تب بھی ثواب تو ہے، لیکن وہ مخصوص فضیلت جو ہے نا وہ سورہ یاسین کی ہے. اچھا، اور ایک اور حدیث پاک میں فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کے لیے حاضر ہو وہ بخش دیا جاتا ہے اور اسے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھ لیا جاتا ہے. حوالہ المعجم الاوسط رقم الحدیث حدیث نمبر 6114 جلد 6 صفحہ 175. اچھا، اس حدیث میں بھی اس صبح کا ذکر نہیں ہے، جمعے کے دن کسی وقت بھی حاضری دے تو ثواب ملے گا. البتہ وہ ہے صبح کا بھی ہے، فتح عالمگیری کے حوالے سے بہار شریعت میں ہو سکتا ہے فتح عالمگیری کا اس میں حوالہ ہوگا. تو اس کے صبح انہیں بہتر ہے کہ صبح کے وقت دے، ورنہ جمعے کے دن کبھی بھی دے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. حدیث پاک میں مرقوم یعنی آ گیا، مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید، آمد نور خدا، آمد نور خدا، صلی علی خوش آمدید. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. دعا اللہم بسمک امتو و احیا، آمین. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم نے دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. کو گتارا نام محمد، دل کا اڈالا نام محمد. کیا منظر آقا ابراہیم، کیا منظر صحابہ اور پھول، کیا منظر آقا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، تاج دار انبیاء سب سے آخری نبی ہے، حبیب کبریا سب سے آخری نبی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا. اللہ کریم سارے بچوں کو بامر عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامیہ مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ چومنا نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. ربیع الاول شریف کے مدنی مذاکروں میں مختلف شہروں سے عاشقان رسول کی فیضان مدینہ کراچی آمد کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح آج 24 اگست بروز پیر کے پی کے، فیصل آباد، ملتان، میرپور خاص، قصور،
गुजरात, गुजरांवाला, कोट अद्दू और इसी तरह दीगर मुख्तलिफ़ शहरों से आशिकान रसूल यहाँ फैज़ान मदीना में हाज़िर हुए हैं। इसी तरह कराची सिटी से 2 डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट गुलजार हिजरी में से साउथ टाउन, मारीपुर टाउन, केमाड़ी टाउन, बल्दिया टाउन, सईदाबाद टाउन, साइट एरिया टाउन, सफूरा टाउन, गुलजार हिजरी टाउन, क्लिफ्टन टाउन, डिफेंस टाउन और इसी तरह जो दावत इस्लामी के शोबा जात हैं, इनमें से शोबा मदरसा मदीना, शॉर्ट टाइम, मदनी कोर्सेस, काफिला, नेक आमाल और मीडिया डिपार्टमेंट के इस्लाम भाई आज खुसूसियत के साथ मदनी मुज़ाकरे में हाजिर होने की इत्तला है। माशाअल्लाह, सबको खुश आमदीद, मरहबा, अहलन व सहलन। सीधी SMS के ज़रिए एक सवाल ये मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं अगर सरपरस्त ने बच्चों के इस्तेमाल की अशिया बच्चों की मिल्क नहीं की और बच्चों को इस्तेमाल के लिए दी हैं, तो क्या इस सूरत में भी बच्चे एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते? मिल्क इस सूरत में हो जाती है कि अगर बच्चे की नीयत से खरीदते वक्त की नीयत कि ये मैं फला नाबालिग बेटे के लिए ले रहा हूँ, अब ये उसकी हो गई खरीदते ही वालिद साहब के। अच्छा, अब इसलिए खरीदते वक्त ये नियत करे, किसी बच्चे की नियत ही नहीं करे कि मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ, जहन में ये रखे नियत। अब ये बच्चों में डाल दे, जो बच्चा खेले तोड़े फोड़े, रिश्तेदार के बच्चे अगर खेलें, पड़ोसी खेलें, तो सबके लिए ये क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, जब ये कि वही डाल देंगे तो ये इजाज़त अंडरस्टूड होगा ना कि ये कि भले सब खेलें। अब अगर बाप की इजाज़त सिर्फ आप बाप का जहन है कि खाली मेरे बच्चे खेलें, तो फिर बाहर वाले नहीं खेल सकेंगे, ख़ानदान के दूसरे बच्चे भी नहीं खेल सकेंगे। जैसे बाप ये नियत कर ले कि जो भी खेले, बाहर का, ख़ानदान का, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी हो, क्योंकि आप नहीं भी नियत करेंगे ये तो खेलेंगे बच्चे, तो बच्चे तो नियत करके अच्छा आप अपना सवाब भी खड़ा कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब जैसा खिलौना, बाज़ खिलौने थोड़ा हेवी होते हैं और कीमती होते हैं, तो ये भी छुपा के रखने की तरकीब तो होती ही होगी ज़ाहिर, तो फिर वो तो छुपा ही दिया जाए, और जो टूटे फूटे या कम कीमत होते हैं वही मेरा ख्याल है आवाम के लिए डालते होंगे, भले टूटे में मजीद तोड़ो इनको। सैयद आज़म अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ, या मुर्शिद करीम ये इरशाद फरमा दें कि नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा नूर बार किस अंदाज का हुआ करता था, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामा शरीफ किस तरह बांधा करते थे। माशाअल्लाह, इमाम शरीफ के मुख्तलिफ रंग उसमें लिखे हुए, इमाम के फ़ज़ाइल जो मकतबतुल मदीना की किताब है, ज़ख़ीम किताब है, इमाम के लिए इसमें जितनी मालूमात है ना, शायद कोई किताब हो सकता है किसी भी ज़बान में इमाम के फ़ज़ाइल पर ना लिखी गई हो, इतनी ज़ख़ीम हो तो मुझे मालूम नहीं है। इसमें अब कौन कौन से कलर हैं आपको याद हो? असल में कलर तो उन्होंने पूछे नहीं है, वैसे तो कलर हमने पहले कई मरतबा आपने बयान किया शुरू में, जैसे ब्लैक कलर है, हरकानी कलर है, इसी तरह वाइट कलर है, और यूं ही काला है, काला कलर है, और जो सुर्ख धारीदार है जी वो है। अच्छा, धारीदार कुर्ता इमाम शरीफ का भी गालिबन मौजूद है। अच्छा, सुर्ख रंग मौजूद है तो फिर उसकी ताबीर इसी से की गई है, वैसे सुर्ख रंग का जिक्र है उसमें। अब मुतलक नहीं था, धारीदार थी। इसी तरह गालिबन जो पीला कलर है उसका तस्करा मौजूद है, वो तकरीबन 7 के करीब कलर जो है उस किताब के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये तरीक़ेकार पूछ रहे हैं कि वो, हाँ वो अर्ज़ कर रहा हूँ, इसमें ये देखिए कि इसके अलावा जो कलर हों तो वो भी पहन सकते हैं, जब तक उसमें कोई शरअन कबाहत ना हो। अब जो रंग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहने, अब वो रंग भी अगर यहाँ आप पहनेंगे, शौक़ अगर वो हो जाएगा, वो ना भड़कीला चमकीला जैसे बाज हमारे यहाँ पहनते हैं, तो फिर वो मना हो जाएगा। दूसरा है कि अगर ये रंग किसी कौम ने ऐसा इख्तियार किया कि उसका शियार बन गया, और वो कौम जो हो मतलब बद मज़हब कौम हो कोई, या गैर मुस्लिम कौम हो, और उस रंग का, उस तरह का इमामा, उस बंदिश का अगर पहनने वाले लोग समझे अच्छा चाहिए, तो
फला शख्स है, तो फिर इस तरह का अगर कोई किसी की वो शियार यानी किसी की अलामत बन गया तो अब वो रंग वो उस तरह का इमामा नहीं पहन सकते। और ये सारे लिबास में भी आ जाएगा ये उसूल, ये ख्याल रखिएगा। अच्छा, फिर ये कि जो मुसलमानों में राइज हो वही अंदाज वही रंग इख्तियार किया जाए, कि बाज़ औक़ात बेशक वो सुन्नत से साबित होता है और उसके जवाज़ में भी चलो कोई कलाम नहीं है, ताहम चूँकि लोगों में राइज नहीं है ना, तो लोग फिर बाज़ औक़ात बातें बनाते हैं और फिर ये कि बाज़ औक़ात उसका इनकार करते हैं। इसकी मिसाल आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये दी है, ये कहीं हुआ होगा ऐसा। अच्छा, हमारे यहाँ क्या आजकल ये हम शिमला पीछे वो इमामे के पीछे कुछ कपड़ा छोड़ते हैं, इसको शिमला बोलते हैं। तो कोई ऐसा कौम होगी या कोई ऐसा शहर या इलाका होगा कि जहाँ इस शिमले पर लोग तंज करते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर या वैसे मिसाल दी कि कहीं शिमले का लोग मजाक उड़ाते हैं तो फिर ये कि शिमला ना डाला जाए पीछे, बगैर शिमले का पहने, कि बगैर शिमले का भी सुन्नत से साबित है। वो इसलिए आला हज़रत ने फरमाया कि ये हदीस तवातुर से है शिमला रखना, और ये शिमले का मजाक उड़ाना ये कुफ्र है, क्योंकि यानी ऐसी हदीस की वो असनाद होती हैं, इसकी अक़साम होती हैं, तो ये कुफ्र हो जाएगा। तो इनको ये नादानी में या मालूमात की कमी में ये कुफ्र वाली बात कर देते हैं। तो इसलिए इनको बचाने के लिए आप बगैर शिमले के पहने, ताकि ये ऐसी भूलें ना करें लोग। तो इस तरह की और भी बाज़ मिसालें दी आला हज़रत ने कि जो मतलब अम्र मुस्तहब होता है, काम मुस्तहब होता है, सवाब का काम होता है, लेकिन लोगों में राइज नहीं होता और लोगों की मालूमात की कमी की वजह से फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और मैं भी मिसाल नहीं दूंगा आपको, मेरे मिसाल देते हुए डर लगता है कि कहीं कोई कैच कर लेगा, सोशल मीडिया का दौर है, देखो वो क्या बात कर दी इसने, क्या वो खाली पीस देगा, आगे पीछे मैंने क्या कहा है वो नहीं देगा। तो इसलिए वो ऐसा करना भी नहीं चाहिए, अगर ख़यानत है ये, और इस्लाम ने फितने की हौसला शिकनी की है। लेकिन बाज़ औक़ात बस कुछ होता है कि मज़हबी लोग अच्छे नहीं लगते, दीन बेजार लोग होते हैं बाज़, और इस तरह के लोग कर रहे होते हैं। अल्लाह इन सबको हिदायत दे, सच्ची तौबा नसीब करे कि इस्लाम को अगर फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते अपनी ज़ात से तो नुकसान ना पहुँचाएँ, आखिरत की बर्बादी है इसमें। तो इसलिए मतलब उलमा अहले सुन्नत से मरबूत रहने वालों को पता चलता है, या कम से कम दावत इस्लामी के माहौल में जम जाएंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें भी उलमा हैं अपने, कई उलमा होते हैं जो हर आलिम ये नहीं होता कि जुब्बा कुब्बा और दस्तार और कद काट और ये नहीं होता, मतलब बाज़ औक़ात बिल्कुल छोटे कद का एक बच्चा लगता है लेकिन इल्म का समुंदर होता है। मैं आपको सही बोलता हूँ, उसकी इतनी नॉलेज होती है और इतना इल्म होता है, तो पहचाने नहीं जाते। अच्छा, फिर दावत इस्लामी के उलमा तो वाकई ऐसे है कि पहचान ही नहीं जाते। अब ये दोनों उलमा भी मुफ्ती भी हैं, अब हम में अगर ही हों, अब चूँकि स्क्रीन पर आकर तारुफ हो गया है, वरना एक आम तौर पे ही जाएं तो इनको कोई नहीं पहचानेगा कि ये मुफ्ती साहब है, ये आम, समझे। तो हमारे अंदाज दावत इस्लामी में इस तरह का है कि वो पहचाने नहीं जाते, सादगी है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतवा रज़विया शरीफ जिल्द 22 फतवा रज़विया जिल्द 22 सफ़ा नंबर 186 186 के नीचे मतलब है बिल्कुल आखिरी सत्रों में, इमामे में सुन्नत ये कि 2.5 गज से कम ना हो, न 6 गज से ज्यादा, और इसकी बंदिश गुंबद नुमा हो। फिर अपना फरमाते हैं कि जिस तरह फकीर बांधता है, जिस तरह मैं बांधता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल 12वीं शब है और क्या ही अच्छा हो कि हमारे लिबास में इमामा शरीफ भी शामिल हो जाए, कल तरगीब हो कि कल की रात तो बा इमामा गुजरे। जी जी, ऐसा शामिल हो ना, काश और आज से शामिल हो जाए ना। सुभान, आईने के सामने खड़े होकर बांधना भी शुरू कर दे। बात यूं भी बोले हमको बांधना नहीं आता, आपको ये पहनना आता था, और किसी लिबास का मैं नहीं दूंगा मिसाल,
नहीं आता था ना, अम्मी खींच खींच के पहनाती थी, अब सीख गया। इमामा भी इंशाल्लाह बांधते रहेंगे तो सीख जाएंगे। और जिम्मेदारान भी थोड़ी तरगीब दिलाए ना इस्लामी भाइयों को, तो आपका भी नहीं, माशाल्लाह आपने देखा अच्छी है, बात उठाई है, बस इमामे के फजाइल। तो आपने भी काफ़ी इमामे बांधे हैं और तरगीब दिलाते थे। और अरे मैंने जितने बांधे बहुत कम ने किसी ने बांधे होंगे इतने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल अगर इमामा बांधो, तहरीक भी चल जाए और वाह, आका की प्यारी प्यारी सुन्नत पर अमल हो, फिर जुलूस मीलाद में भी शिरकत करनी है तो बा इमामा हो। वो सवाल चल रहा था ना, तो क्या फरमाते हैं उलमा दीन इस मसले में कि तरीक़ा मसनूना दस्तार बांधने का क्या है। दाहिनी तरफ से यानी राइट साइड से बाईं तरफ या बाईं तरफ से, और ये बाईं मैंने लेफ्ट, और किस तरफ से शुरू करना कैसा है, मा दलील। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात में दाहिनी तरफ से यानी राइट साइड से इब्तिदा शुरुआत करना पसंद फरमाते, यहाँ तक कि जूता पहनने में पहले जूता सीधा पहनते थे, जब पहनते उतारते उल्टा जूता यानी नाले पाक। लिहाजा मुनासिब ये है कि इमामे का पहला पेच सर की दाहिनी जानिब जाए, न सीधी तरफ जाए। तो ये उल्टी तरफ से लेंगे तो सीधी तरफ जाएगा ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सुन्नत के मुताबिक वही उसी अंदाज में फतह रज़िया को देखकर, मैं पहले भी सुन्नत के मुताबिक मुझे पता नहीं था, मैं बांधता था। फिर बहुत पुरानी बात है, शायद गुजरात में या पंजाब के किसी, जब मैं काफिलों में जाता था मुख्तलिफ शहरों में, वो बयानात होते थे और हिफ़ाज़ान मदीना वगैरह भी शायद नहीं होता था, तामीर ही नहीं हुई थी। तो वहाँ कुछ दो आदमी खड़े हो गए, दाढ़ी वाले थे, इमामा बांधे हुए। उन्होंने कहा आप ये इस तरह बांधते हैं, हिकमत क्या है? फतह रज़िया में तो यूँ लिखा है कि सुन्नत में है, फतह रज़िया में लिखा है। हाँ, तो मैंने उसी को खोल दिया अपने इमामा। आला हज़रत के ताल्लुक से फिर मैं आर्गूमेंट नहीं करता, तो मैंने खोल लिया और मैंने ज़ोर लगा कर कोशिश करके जिन्होंने इस तरह बांधा था ना, वो बताया मुझे, मैंने उसी अंदाज में उसी वक्त हाथों हाथ लाइव, ये लाइव और ये कोई चीज़ थी नहीं हमारे पास, ना उसको वीडियो बनती थी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको उसी तरह सुन्नत के मुताबिक कर लिया कि मुझे पता नहीं था, उनका शुक्रिया भी अदा किया होगा ज़ाहिर है, और इस तरह वो तरकीब मैंने बनाई थी। जो बांधते बांधते कम है, थोड़े बांधने वाले। अल्लाह करे सारे दावत इस्लामी का दीनी काम भी करना शुरू करते ना, सुन्नतें भी मालूम हो जाएंगी, अमल भी और सब, क्योंकि अब ये फ़न है, इन फ़नून में ये माहिर होते हैं अपने, और ये मुबल्लिग होते हैं, सुन्नतें बयान करने में माहिर होते हैं। लिकुल्ल फ़न्निन रिजाल। इमाम शरीफ के हवाले से अमीर अलसुन्नत ने अभी किताब का तज़किरा फरमाया। ये किताब 280 कुतुब और रसाइल और 6 मखतूतात से माखूज़ इमाम शरीफ के फ़ज़ाइल और मसाइल और मुफीद मालूमात पर मुश्तमिल किताब इमामा के फ़ज़ाइल 517 सफ़हात हैं और 133 रुपये 133 रुपीज़ ओनली इस आप मकतबतुल मदीना से कीमतन हासिल कर सकते हैं, और दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदों में बगैर इमामे और इमामा बांधे आया करो, इसलिए कि इमामे मुसलमानों के ताज हैं। हवाला कंजुल उम्माल, हदीस नंबर 4135। हज़रत अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस हदीस पाक का मतलब ये है कि जिस तरह मुमकिन हो मस्जिद ना हो, चाहे तो टोपी पहनकर या सरबंद या इमामा शरीफ बांध कर। इमामा ना होने की वजह से जुमा या जमात को हरगिज तर्क ना करो। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामे के साथ नमाज 10,000 नेकी के बराबर है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामे के साथ 2 रकात नमाज बगैर इमामे की 70 रकातों से अफजल है। 70 मीन 70। तो बहरहाल इमामा शरीफ पहनकर नमाज पढ़ने से सवाब बढ़ जाता है, और बढ़ भी कितना जाता है।
70 2 रकात पढ़ी तो ये 70 रकात से बढ़कर है, अफजल है, 70 रकातों से अफजल है। तो थोड़ी सी अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो नमाज का सवाब बहुत बढ़ जाएगा। तो जो नहीं पहनते कम से कम नमाज में ही पहना करें, जब जब मुमकिन हो पहना तो करें, आदत डालें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आदत पड़ जाएगी। जो इमामा नहीं पहनते उनको गुनाहगार नहीं समझा, गुनाह नहीं है। कोई इमाम भी अगर इमामा ना पहना हो और टोपी पहना हो और आपने भले इमामा सजाया हुआ हो, तब भी इसकी वजह से जमात तर्क नहीं करेंगे। इमाम में के ना पहनने की वजह से इमाम के बारे में बिल्कुल कोई बुराई जहन में नहीं लाएंगे, ये ध्यान रखना, वरना गुनाहगार हो जाएंगे अगर इनको बुरा समझा तो। ये फजीलत है इसमें इमामे में। अगर कोई नहीं पहनता, जिंदगी में एक बार भी नहीं पहनता, तभी वो गुनाहगार नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। तो हम लोग सिर्फ तरगीब तरगीब तरगीब, सुन्नत सवाब है, पहनो पहनो पहनो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो कल बड़ी रात है, सुबह बहारा आ रही है, तो क्या ही अच्छा हो कि इमामे के साथ और सुबह बहारा का इस्तकबाल भी इमामा परचम, मिलादी परचम हाथ में हो और दुरूद और सलाम निगाहें नीचे किए बीबी आमिना के घर की तरफ बढ़ते बढ़ते मुबारकबाद पेश करने के लिए पढ़े। किसी कर्म की बात है, अगर ये सआदत मिल जाए, ये सआदत मिलना ही बहुत बड़े कर्म की बात है। ये कल के लिए अभी से नियत कर लें कि इंशाअल्लाह मैं पूरे एहतमाम के साथ हो सके तो गुस्ल करके हर चीज़ मेरी तो बरसों से अल्हम्दुलिल्लाह आदत है, तरगीब भी दिलाता हूँ, जितनी कोशिश होती है, लिबास नया, चादर नई, इमामा शरीफ नया, टोपी नई, इसकी सरबंद इसके नीचे नया, मिसवाक नई, इत्र की नई शीशी से इत्र लगाना, साबुन नया, तेल की शीशी नई, जितना हो सकता है मैं हर चीज़ या अक्सर चीज़ वो जो जो इसका आसान बोलो मोबाइल ये वही होता है, मकान तो ये भी नहीं बदलता, नया नहीं हो। तो मैं वजात कर दूँ ना, हर चीज़ मेरे बस में भी नहीं है। तो जो जो अपने बस में है वो नए चप्पल नए पहले पहनता था मैं, अब बाहर निकलना ही नहीं होता तो मैं चप्पल को लेके करूँ क्या यार। तो इसलिए ये अब मैंने नए लेना छोड़ दिया, वरना मेरे नए होते थे, बाहर जाता था जुलूस में पैदल जाता था, अब सारा बस हिसाब किताब बदल गया। अल्लाह। तो खैर जो जो हो सकता है झंडे मेरे नए इंशाअल्लाह आ जाएंगे या आ गए होंगे कल रात को नए झंडे। जितना हो सकता है कोशिश होती है कि नई चीजें मैं इस्तेमाल करूं। आप भी जहाँ एक जज्बा है, मोहब्बत है, ये भी मोहब्बत, इसका मतलब पुरानी चीज फेंक नहीं देते, नई चीज आका की मोहब्बत में कि जब आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, शबे विलादत। तो जो नई हुकूमत इस दिन आई थी, इस वक्त आई थी, अब वो ना दिन था ना वो रात थी जब विलादत बासादत हुई, न कुछ रात बाकी थी, कुछ दिन तो का शुरू हो गया। और इस तरह मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए कि रात को भी फजीलत बख्शी और दिन को भी फजीलत बख्शी, दोनों खुश रहे कि दोनों के दरमियान सरकार इस तरह तशरीफ लाए कि दोनों खुश हो गए दिन रात। तो इसीलिए सुबह शबे विलादत। तो बहरहाल ये कि ये बस है जहन के वो नया 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 होगा, तो अल्लाह ने चाहा तो मेरे आका नजर फरमाएंगे तो हमारा गुनाह भरा काला काला दिल भी धुल के नया नया हो जाएगा इंशाअल्लाह। छोटा सा है मुंह मेरा और बात बड़ी सी है, और बात बड़ी सी है, क्या आप मेरे
بستی کو بساؤ گے، کیا آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو امامے کی بھرپور ترکیب انشاءاللہ کرنی ہے نا؟ جو نہیں پہنتے وہ بھی اب کل پہن لینا۔ سر پر امامہ سجا رہے گا، سر پر امامہ سجا رہے گا، سر پر امامہ سجا رہے گا، رخ پر داڑھی سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، مسواک پیدان مسواک۔ جاری رہے گا۔ تو امامہ شریف پہن کر انشاءاللہ میلاد پاک منانے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور جلوس میں کندھے پہ امامہ، جی جلوس میں کندھے پہ امامہ۔ پہلے تو میں دیکھتا تھا اسلامی بھائیوں کو کندھے پہ رکھتے، نہیں سر پر امامہ، امامہ سر پہ رکھیں گے۔ امامہ سر کے لیے۔ اچھا سر کے ہے تو سر کے لیے، یہ کندھے بھی میرا خیال ان کو پہننا نہیں آتا ہوگا تو بھیڑ بھاڑ میں تھوڑا کھل جاتا ہوگا تو کندھے پہ رکھ لیتے ہوں گے۔ تو باندھنا تو آہستہ آہستہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ نیت صاف منزل آسان، کہ باندھنا ہے تو باندھنا بھی آ جائے گا۔ تو کہیں کونے کھانچے جا کر جس کو باندھنا آتا ہو اسلامی بھائی سے بندھوا لیا کرو، کندھے پہ رکھنے کا نہیں۔ سر پر امامہ سجا رہے گا، سر پر امامہ سجا رہے گا، سر پہ امامہ سجا رہے گا۔ جس کی سنت پر عمل کرنے کی ہم نیت کر رہے ہیں، ان کی شان میں پیارے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، ڈھلکا اس وقت تصور کرتے ہیں تو کیسا مطلب تصور کیسا بنتا ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے شملہ جو پشت اطہر کی طرف جو ڈھلکتا ہوگا، کیا اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے بات کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ پشت اترا صحیفہ نور کا
سر پھرنے کو بنتا ہے امام نور کا گرد سر پھرنے کو بنتا ہے امام نور کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، یہاں لغت کی بات، تاج العروس ایک لغت کی کتاب اس کے حوالے سے ہے کہ امامہ عین کی زیر کے ساتھ ہے، اور جو شمائل کے بعد شارحین نے شرح کرنے والوں نے اسے زبر کے ساتھ امامہ لکھا، وہ غلط ہے. حوالہ تاج العروس باب المیم فصل العین جلد پہلی صفحہ 7830. اچھا، تو اب یہ کہ اصل جو عربی میں وہ تو امامہ ہے، اب رہا اردو میں زبر کے ساتھ لکھا ہے لغت میں. تو اگر امامہ اردو میں ہم کہیں تو بھی درست ہے، اور عربی میں کہیں تو حرج بھی کیا ہے، تو جو جس طرح چاہے. میں تو خیر امامہ عام طور پہ بولتا ہوں. اچھا، دوسرا وہ شملے کا ہے نہیں حوالہ ہوئے، لیکن شملہ ہے زیر سے نا، معروف یہی ہے کہ شین کے نیچے زیر پڑتے ہیں، شملہ. خیر ہمارے نعت خوان بھی ہوشیار ہے، ایک بار شملہ کا ایک بار شملہ کا، دونوں میں سے ایک تو درست ہوگا نا یار. اچھا، وہ پیش نہیں بڑھا انہوں نے، یا کسی نے اشارہ کیا ہوگا. ویسے ہم نے اب تک شملہ ہی سنا ہے، ہو سکتا ہے لغت میں مل بھی جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کسی اور کو امامہ شریف باندھا ہے؟ جی ہاں، اس کی روایتیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف اپنے دستے مبارک سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور مولا علی رضی اللہ عنہ ان کو باندھا تھا. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امامہ شریف باندھا تو اس کا شملہ میرے آگے اور پیچھے لٹکا دیا، ایک آگے. تو اس میں پھر وہ سیدھی طرف کا لکھا ہے کہ سیدھی طرف امامے کا آگے شملہ ہو اور ایک امامے کا شملہ پیچھے ہو. اچھا، بعض بزرگوں سے الٹی طرف، وہ اس سوچ ان کی اپنی سوچ ہے، حکمت ہے کہ دل الٹی طرف ہے تو شملہ جو ہے نا وہ الٹی طرف رکھا جائے، اس طرح بھی ہے. تو جس پر بھی عمل کریں آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو دو شملے والی حدیث جو ہے نا اس کا حوالہ ہے ابو داؤد شریف کتاب اللباس باب فی العمائم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو یمن کی جانب روانہ فرمایا تو انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پر امامہ شریف باندھا. حوالہ طبقات ابن سعد. اور ایک اور روایت ہے وہ اس میں دو شملے کا ذکر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لیے جھنڈا تیار فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ لیا، حضرت علی کا ہی امامہ لیا اور اسے طے کیا اور اسے نیزے کے سرے پر رکھ دیا اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دیا. پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں امامہ شریف باندھا جس کے 3 پیچ تھے، جو گھومتے ہیں نا یہ 3 تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شملے ایک ہاتھ کی مقدار حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے کی جانب اور ایک بالشت کی مقدار، انہیں ایک جو تھا وہ ایک ہاتھ کے برابر تھا اور دوسرا تھا ایک بالشت، اس کو بولتے ہیں چھوٹی انگلی کے سرے سے لے کر انگوٹھے کا سرا، یہ بالش کہلاتا ہے. تو ایک بالشت کی مقدار شملہ ان کی پشت پر، پیٹھ کی طرف، پیٹھ مبارک کی طرف لٹکا دیا.
हवाला सुबुलुल हुदा वर रशाद, जिल 4 सफ़ा 238, मुलख्खसन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। हमारे यहाँ बात इसलिए हुआ 2 शिमले रखते हैं। खुद आला हज़रत फरमाते हैं कि हम सुन्नत पर अमल करने के लिए कभी कभी मैं भी 2 शिमले इमामे के रखता हूँ। कभी 2 शिमले वाली सुन्नत अदा कर ले, कभी 1 शिमले वाली सुन्नत अदा कर ले, ये भी हो सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 11 रबीउल अव्वल शरीफ महाना 11वीं शरीफ का सिलसिला अमीर सुल्तान बरकातुहुल आलिया ने अपने घर पर न्याज का एहतमाम किया। आइए आपको इसका वीडियो क्लिप दिखाते हैं। इरशाद गौसे आजम, ऐ ईमान वालो, तुम मस्जिदों और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक को लाजिम कर लो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुसैन और हसन फूल बाग़े नबी के, इसी बाग का तू है फल गौसे आजम। दम दमादम दस्तगीर मेरा पीर महबूबे रब्बे कदीर, सारे पीरों के हैं पीर, बेमिसालो बेनज़ीर, दिल पसंदो दिल पदीर, गौसे आजम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर, अल्हम्दुलिल्लाह। आज 1448 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की 11वीं शब है और माना 11वीं शरीफ की तरकीब की है, नियाज की है। आपने भी नियाज ना की हो तो कर लीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। क्या बताऊं, कारोबार बड़ा ठंडा पड़ा है, गाहक आते ही नहीं, पूरा दिन हाथ पे हाथ रखे गुजर जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, जरा कोई अच्छा सा सूट दिखाइएगा। मर्दाना चाहिए? जी अपने लिए चाहिए। अरे भाई जरा रुकिए, ये कौन से रंग दिखा रहे हैं आप? तो फिर आप ही बताओ कौन सा चाहिए। वो ग्रे कलर वाला दिखाएं और वो हाफ वाइट, हाँ साथ में वो लाइट ब्लू भी दिखा दें। कोई सादा और डिसेंट रंग चाहिए। वो महंगा है। क्या मतलब, जो पसंद आया वो महंगा हो गया? ये लो देख लो। कलर तो अच्छा है लेकिन मैंने पहले ही कहा था आप नहीं लेंगे। ये सस्ता वाला देख लो, वो आपके लिए ठीक है। भाई जरा आराम से, खरीदार देखेगा, पसंद करेगा, फिर फैसला करेगा ना। इतना सारा कपड़ा खोल दिया, वक्त लगाया, अब भी पसंद नहीं आ रहा। हम फारिग बैठे हैं क्या? अच्छा, इसकी कीमत कितनी है? इसका सूट आपको 8,000 का पड़ जाएगा। कुछ गुंजाइश करें। हमारे यहाँ एक दाम है और खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। दादा जान, आपसे एक बात करनी है। जी बेटा, फरमाइए। आज हम खाना बाहर खाने चलें? बाहर क्यों भाई, घर में खाना नहीं पका? पक्का तो है दादा जान, मगर घर का खाना तो हम रोज ही खाते हैं। आज बाहर खाएंगे तो मजा भी आएगा और वापसी पर रबीउल अव्वल शरीफ की खूबसूरत लाइटें भी देख लेंगे। बिल्कुल नहीं, इस्लामी बहनों का लाइटें देखने के लिए जाना बिल्कुल समझ नहीं आता। दादा जान, आप मान जाए ना, आप भी हमारे साथ खाइएगा। बाहर का खाना बड़ा मजे का होता है। अच्छा, बाहर खाना खाने से पहले मेरा आप दोनों से एक सवाल है। ये बताइए, घर के खाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं, लेकिन उसे देखकर मुझे भूख ही नहीं लग रही। और फातिमा बेटा, आपको? बस दिल कर रहा है कुछ और खाया जाए। फिर तो मसला समझ आ गया। क्या दादा जान? इसका मतलब है आप दोनों को अभी असली भूख नहीं लगी हुई। दादा जान, ये कैसे हो सकता है? रात के 9 बज गए हैं, ये तो खाने का वक्त है। खाने का वक्त जरूर है बेटा, लेकिन जरूरी नहीं कि भूख भी लगी हो। तो फिर हमारा बाहर खाने का दिल क्यों कर रहा है? क्योंकि कभी कभी हमें भूख नहीं होती, सिर्फ किसी मजेदार चीज को खाने का दिल कर रहा होता है। तो असली भूख का पता कैसे चलता है? बहुत आसान तरीका है। अगर आपके हाथ में सिर्फ सादा रोटी हो और सालन ना हो, लेकिन फिर भी आप शौक से रोटी खाने लग जाएं, तो समझ जाएं कि आपको वाकई भूख लगी है। दादा जान, ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ रोटी? जी हाँ,
अगर वाकई भूख हो तो इंसान सिर्फ सादा रोटी भी खा लेता है। नहीं दादा जान, अभी तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। और मेरे साथ भी नहीं। असल में हम लोग टाइम से खाना खाते हैं। भूख हो ना हो या कम हो इससे मतलब नहीं रखते, बस टाइम हुआ खा लिया। दादा जान, इतनी भूख तो कभी लगती ही नहीं कि सिर्फ सादा रोटी खा ली जाए। बेटा, असल भूख ही इसी को कहते हैं। यानी भूख चेक करने का फॉर्मूला मिल गया। जी माशाअल्लाह। और भूख के 3 हिस्से करने का अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा खाना और 1 हिस्सा खाली हवा के लिए। तो अभी क्या करें दादा जान? थोड़ी देर खेल लीजिए, कुछ काम कर लीजिए, जब वाकई भूख लगे तो खा लीजिएगा, फिर देखिएगा यही घर का खाना कितना मजेदार लगेगा। ठीक है दादा जान, आज देखते हैं असली भूख कब लगती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आजम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हैदर रजा साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, खैरियत है? हाथों में इतने बैग्स, लगता है खूब खरीदारी हुई है। जी, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की कुछ तैयारी के लिए बाजार गया था। घर वालों की चीजें तो ले आया हूँ, मगर अपना सूट रह गया। क्यों? अपना सूट पसंद नहीं आया क्या? हैदर रजा साहब, क्या बताऊं, बाज़ औक़ात इंसान की चीज़ अच्छी होती है, दुकान अच्छी होती है, मगर उसका रवैया गाहक को हमेशा के लिए दूर कर देता है। कारोबार सिर्फ चीज़ बेचने का नाम नहीं है, गाहक से अच्छे अखलाक से पेश आना भी ज़रूरी होता है। इन दुकानदारों को कोई समझाने वाला भी तो नहीं है। क्यों नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन मार्केटों, बाज़ारों वगैरह में दर्सो बयान का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन फिर भी अमीर अहले सुन्नत से पूछ लीजिए, हजरत साहब, एक दुकानदार को गाहक के साथ किस तरह का अखलाक इख्तियार करना चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जो उसके कारोबार और आखिरत दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, दादा जान आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपकी हर बात भी मानते हैं। आप ही हमें कभी कभी बाहर खाना खाने की इजाज़त दिलवा दीजिए। मुझे दादा जान ना जुलूसे मीलाद में लेकर जाते हैं और ना रबीउल अव्वल शरीफ की सजावट दिखाने ले जाते हैं, जबकि मेरी दोस्त की पूरी फैमिली सजावट देखने भी जाती है और जुलूस में भी लंगर लूट कर लाती है। क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत ऐसी फैमिलीज के हवाले से? माशाअल्लाह, 3 सवाल होते हैं इसमें। एक दुकानदार को ग्राहक के साथ किस तरह का अखलाक इख्तियार करना चाहिए। अच्छा, तो अब इसमें यह कि कहीं मतलब उल्टा तो नहीं हो गया? दुकानदार तो आमतौर पर ग्राहक को काबू करने के लिए कुछ ज़्यादा ही अखलाक का मुजाहरा करता है। उसने अखलाक का वो कभी जब कब घूमती है इसकी दुकानदार की कि जब उम्मीद से बहुत कम दाम बता दिया जाए। वो तमहीद जो बांधी थी ना, शायद वो सवाल का ये सबब है कि तमहीद ये बांधी थी कि वो किसी को फ़ोन पे कह रहे थे कि गाहक ही नहीं आ रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ हूँ। तो शायद उस तमहीद की बुनियाद पर अभी ये सवाल बन रहा है कि इनके पास गाहक क्यों नहीं आ रहे थे। वो ठीक है, लेकिन मैंने आमतौर पर जो देखा वो बता रहा हूँ कि दुकानदार आइए चाय बोतल एक पूछो ना कि फुला, तो कई थान खोल के डाल देते हैं। खोल, अरे नहीं 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 कोई बात नहीं, आप देखिए देखिए गाहक घबरा कर मुरव्वत में ले ले कुछ ना कुछ, इतने खोल देंगे। अब ये बदतमीजी कब करते हैं? जो मैंने अंदाजा लगाया कि जब गाहक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वो दाम लगाए, 100 रुपये उसने कहा तो उसने कहा 2 रुपये, तो अब इसकी घूम जाए, ये अलग। लेकिन बात फिर भी नहीं घूमती, क्योंकि ये कारोबार की वजह से खुश अखलाकी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। ये जनरल बात करता हूँ। हाँ, ग्राहक बदतमीजी करते हैं, वो बुरा भला बोलते हैं, माल का नक्श निकालेंगे और मसाइल बाज़ों का ग्राहक की तरफ से ज़्यादा होते हैं। ताहम अगर कोई कारोबारी, कोई ताजिर या कोई दुकानदार ऐसा कर भी रहा है, जैसा उसने कहा कि मेरे पास तो ग्राहक ही नहीं आए, तो इसकी यहाँ के बदतमीजी की आदत होगी, छोटे बड़े की तमीज़ नहीं होगी और बदअखलाकी से वो बात करता होगा जिसका उसने मुजाहरा किया, तो ये मतलब यानी कि इसलिए उसका काम
चल नहीं रहा था। तो दोनों को चाहिए कि अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें, अल्लाह की रज़ा के लिए अच्छे अखलाक अपनाएं, और रोज़ी का रज़्ज़ाक़ यकीनन अल्लाह है, और धोखा ना दे, बिल्कुल यानी कि साफ़ सुथरी बात करें, साफ़ सुथरा काम करें। दूसरा वो लिख कर लगाया था एक दाम, तो एक दाम के ताल्लुक से अर्ज़ करूँ कि ठीक है लगाया उसने, लेकिन ये खुद अमल नहीं कर रहे होते। एक दाम पर लिखने वाले वो बार्गेनिंग हो जाती है, और बार्गेनिंग करना यानी कि भाव कम कराना ये सुन्नत है, फतवा रज़विया में लिखा है। तो इसलिए वो एक दाम ना लिखें, बल्कि वो कुछ ना लिखें, क्योंकि ग्राहक तो मतलब आकर बार्गेनिंग करता है और आप भी ग्राहक को जाने देते हैं कम है, तो फिर क्यों लिखते हैं। अच्छा, दूसरा लिखा था कि ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, ये भी जुमला गलत है, क्योंकि बात सूरतें होती है कि इसमें ख़रीदा हुआ माल इसको वापस लेना पड़ेगा, बात सूरतें होती हैं कि ले ले तो सवाब मिलेगा। तो इसलिए ये भी जुमले दोनों, जब भी कोई इस तरह की शराइत लिखी जाए या तय की जाए तो उलमा से रुजू करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है, स्क्रीन पर वक्तन फ़वक्तन नंबर चलते रहते हैं, तो फ़ोन करके हमने ये लिखा है, और ये मतलब वो सर्विस भी है, ऑनलाइन भी है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन सर्विस। तो इसमें आप ये जो भी लिखा हो स्कैन करके या जिस तरह भी उसको भेज दें तस्वीर उसकी कि ये दुरुस्त है या नहीं, या अगर दुरुस्त नहीं है तो इसमें मुफ्ती साहब से अर्ज़ कर देंगे, आप खुद ही तरमीम भी कर दें कि क्या लफ्ज़ इसमें कम ज़्यादा करना है, तो इस तरह शरीयत के मुताबिक हो जाएगा। एक दाम ये शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, ये मैं वज़ाहत कर दूँ, लेकिन सुन्नत वही है कि बारगेनिंग करे, कम ज़्यादा करे। आला हज़रत ने फरमाया, और ये भी फरमाया कि हज के लिए अगर कुछ ख़रीदे तो जो अगला बोले वो दे दे, अब यहाँ बारगेनिंग ना करे। ये भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मशवरतन एक अच्छी सवाब कमाने की बात, अगर हज के खरीदारी में भी कोई बारगेनिंग करता है तो ये गुनाहगार नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या था बाहर खाना खाने कहाँ जाए भाई? ये आपकी हर बात मानते हैं, हर बात मेरी मानते हैं, तो इनको यही अर्ज करूंगा कि मत जाने देना। अच्छा यूँ? हाँ यार, मतलब घर में 10 रुपए का, बाजार में 110 रुपए का, घर में चीज़ सॉलिड खालिस हत्तल इम्कान, क्यों घर वाले समझते हैं कि हमने नुकसानदेह चीज़, गला सड़ा मसाला और ये नहीं डालना, इनको पाम ऑयल नहीं खिलाना, मुमकिन हो तो इनको जैतून शरीफ का तेल डालना है, देसी घी खिलाना है। तो ये बाज़ार के खाने, इसका टेस्ट अच्छा होता है, एक टेक्निक होती है जो घर में पकाने में आम तौर पर नहीं मालूम होती, कितनी देर पकाना है, कितनी आंच देनी है, बोटी या जो भी इसके पीस कितने कितने बनाने हैं, आलू के पीस कितने बनाने हैं, कब जाएं। अब घरों में आलू क्या कच्चे होते हैं, डालते आखिर में ही है, लेकिन इतना आखिर में डालते हैं कि कच्चे रह जाते हैं, नहीं खाया जाता। बाज़ों को नहीं समझ में आता खाना, कि यार खाएंगे तो पेट में दुखेगा। अच्छा, इसी तरह गोश्त पकाना, अब इतनी सी पतीली है यार, तो बड़े बड़े बोटे डाल दो तो कहाँ से पकेगा यार। बड़े बड़े मुर्गी के पीस छोटे से कढ़ाई में तलते हैं तो कहाँ से तले जाएंगे। छोटे पीस हों, इस पर हस्बे ज़रूरत कट लगाएं, कट खाली टच नहीं, कट, हाँ कट हड्डी तक होता लगाएं, इसको होता नहीं, कट हड्डी तक लगाएंगे तो मसाला पहुँचेगा, नमक पहुँचेगा, हीट पहुँचेगी तेल की, तो जब तलने का मज़ा आएगा। हो छोटे पीस, चाहे मछली हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे बोटी हो, चाहे चाँप हो, मौके की मुनासबत से, तो फिर या तो कढ़ाई बड़ा हो जैसे बेचने वाले रखते हैं, फिर भी छोटे पीस रखते हैं, या बराबर वो कट लगाते हैं। इनकी टेक्निक होती है जिससे चीज़ टेस्टी बन जाती है, लेकिन चीज़ अच्छी घर की, बाजार की, होटल की नहीं। फिर होटल के खानों में ये भी एक प्रॉब्लम है कि हर एक की नज़र पड़ती है जनरली। अब करीब में कोई खा रहा है, अब वो बेचारा गरीब आदमी है, समझे, तो उसने वो मंगवाई
सब्जी और रोटी, और आप बैठे हैं मगज और चापे लेकर या बंदवार हैं, और खुशबू से उसका दिमाग तर हो रहा है, जेब उसकी इजाज़त नहीं देती, तो नज़र लगने का, और हदीस पाक में नज़र का लगना हक है। इसलिए वो बाजार की चीज़ों से तो जो उलमा ने लिखा है कि बचना चाहिए इस तरह, लेकिन जायज़ है, गुनाह नहीं है। बात होगा तो ऐसी मजबूरी होती है कि आदमी बच ही नहीं सकता, ताहम यह कि नज़र पूछ के नहीं लगती, ये खुद ब खुद लग जाती है। तो खतरा तो सबके लिए, वो आप हो या मैं हूं, कोई भी हो। तो बहरहाल ये कि इस तरह मतलब बाजार के खाने में नुकसान, फिर मिर्चें मसाले, ये जो जो मिलावटें, मैंने पहले एक कोशिश की थी कि इसको जमा करूं कि किस चीज़ में क्या क्या मिलावटें करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा फिर बस मैंने भी तवज्जो नहीं दी। फिर ये कि मैंने कि बहुत मिलावट होती है, इतना पाम ऑयल आता है। पहले तो एक बार पूरा फिगर भी बयान हुआ था मदनी चैनल पर, गालिबन पाम ऑयल ही था जो नुकसानदेह, वो खाने का तेल नहीं है, वो तेल खिलाया जाता है, मज़े से पराठे हैं, नाम सुनकर ही मुंह में पानी, और कहीं से गुजरे और ये पराठे तले जा रहे हो, खुशबू से अबाउट टन हो जाए बंदा कि यार मैं भी खा डालूं, फिर पेट पकड़ के बैठा रहूँगा, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें, हर होटल की बात नहीं करता, कोई होटल वाले हड़ताल ना कर दें यार, मतलब ये कि हर होटल वाला ऐसा नहीं करता होगा यकीनन, समझे, लेकिन दुनिया देखी वाली है, कमाना है। तो इसलिए वो इनका फिर ठेले पर जो ठेला होता है, इस पे जो खाने की चीज़ें पकवान बिकते हैं, अब इतने में समझ जाए, बहुत बोल दिया मैंने, जितना मुमकिन हो घर का खाए। और होटलिंग का रवाज बढ़ गया वैसे, ये कम होने से रहा। जिनके पास पैसे है ना, अब मालदार को देखो, इनमें बीमारियां ज़्यादा मैंने नोट की है। मालदार आदमी तो ज़्यादा बीमारियां होती है, गरीब को कम। गरीब हाथ से काम करेगा, मेहनत करेगा, भाग दौड़ करेगा, मजदूरी करेगा, सेठ बैठे बैठे ऑर्डर करेगा, किसको करेगा? नौकर को। नौकर मोमेंट, उसकी सेहत अच्छी, सेठ साहब बेचारे आजमाइश में, ये बेचारे ना बने, खुदा हाथ से काम करे तो फिर बेचारे माइनस हो जाएगा इनका। ये भी तंदुरुस्त स्मार्ट होंगे, पेट फूला हुआ लेकर नहीं फिरेंगे, फिर स्मार्ट रोज दौड़ लगाएंगे ना, थोड़ा पैदल चलेंगे, दौड़ लगाएंगे, पार्कों में राउंड लगाएंगे, देखना ऐसी सेहत हो जाएगी, मक्का मदीना हो जाएगा। तवाफ भी तो करना है ना, पैदल चल गए, सही करनी है तो मीलों मील, फिर घर भी दूर होते हैं, थोड़ी काबा शरीफ के साथ घर मिलेगा आपको, मीलों मील अब तो घर दूर मिलते हैं, इतनी तोसी हो गई है। तो ये कि ये सब पैदल, पता नहीं उमरा शरीफ में हज में इतना चलना पड़ता है कि हर आदमी का काम नहीं है। तो पैदल चलते होंगे तो इसलिए से भी आदमी पैदल चले कि अल्लाह नसीब करेगा मक्का मदीना देखना, हज उमरा, तो इंशाअल्लाह मुझे चलने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी, वरना क्या मर मर के चलेंगे, फिर हाँफते कांपते। तो फिर वो ज़ौक़ जो है ना हज उमरे का कम होता चला जाएगा। तो ये बहुत मतलब ख़राब बात है कि हमको मदीने के नाम पर मतलब अब ज़ौक़ ना हो कि हम जाएं मदीने, यार इतना चलेगा कौन उम्रे में, यार इतना चलो तवाफ़ तो कर लेते यार, ये 2 तवाफ़ जितना तो पैदल चल के जाना पड़ता है, फिर जाके तवाफ़ की बारी आती है। ये सब कदम कदम पर नेकियां, इसलिए वो प्रैक्टिस अभी से जारी रखें, सेहत भी अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह। सेहत अच्छी होगी तो तवाफ में, सही में, मदीना शरीफ की हाजिरी में लुत्फ ज़्यादा आएगा। अब बीमारी होगी, परेशानी होगी, ब्लड प्रेशर हाई लो, नज़ले, खांसियाँ, बुखार चलता रहे, तो फिर ये इबादतें जो है ये मशक्क़त तलब है, तो इसमें सुरूर लुत्फ ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। जुलूस मिलाद में भी चलने में काम आएगा अगर सेहत अच्छी होगी। पैदल कितने मील तक बाजों का जुलूस चलते हैं, हर जुलूस इतना नहीं चलता, अपना जो मरकज़ी जुलूस होता है, अब यहाँ का जो मरकज़ी जुलूस हमारा जो ये है, ये भी इतना नहीं चलता, लेकिन चलता है। जब शुरू में जुलूस ज़्यादा नहीं थे तो वो टावर से वो शुरू होते थे, मेरी वेदर टावर खारादर की तरफ है, तो चलते चलते शायद 4-5 किलोमीटर ये नेशनल पार्क होगा शायद,
इतना पैदल चलना होता था, चलते थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो एक यादगार, हाँ, लाइटें देखने की भी बात, वो फातिमा को लाइटें देखने से मना फरमाया, पहले इसका हो जाता है। हाँ, दादा जान ने, दादा जान मुझे जुलूस मिलाद में नहीं ले जाते और न रबीउल अव्वल शरीफ की सजावट दिखाने ले जाते हैं, जबकि मेरी दोस्त की पूरी फैमिली सजावट देखने भी जाती है और जुलूस में लंगर लूट कर भी लाती है। तो यहाँ ये कि वो बच्ची दिखाई गई है, हम औरतें नहीं दिखाते, लेकिन बच्ची से मुराद है कि इस बच्ची को तो अगर इतनी सी बच्ची है तो जुलूस में ले जाने में हरज नहीं, लाइटिंग दिखाने में ले जाने में मर्दों में हरज नहीं है। लेकिन मुराद बड़ी जो औरतें होती हैं, जवान लड़कियां होती हैं, जब बच्ची 9 साल की होती है ना, 9 साल 9 ईयर, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतार जशीर में फरमाया कि पूरी औरत हो जाती है। अब यहाँ तो अभी जवान नहीं हुई लेकिन पूरी औरत हो जाती है। जवान लड़कियां हुआ बच्ची है, फिर कोई बच्चा उठा के ले जाता तो फिर जो मसाइल होते हैं सब समझते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। तो इसलिए मेहरबानी करके बच्ची कहकर इसको बाजार में न छोड़ दो। पर्दे की पाबंद, इस्लामी पर्दा खुद भी करें, इस्लामी बहनें बच्चों को भी करवाएं, वालिदैन जो भी हैं बड़े ख़ानदान के, इसको सीरियस लें। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ मैं अपनी ज़ात के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, ये हुक्म शरीयत है, अल्लाह और रसूल के जो आकाम है वो अर्ज़ कर रहा हूँ। तुम्हारा 9 साल की बच्ची हो गई, अब तो इसको ज़्यादा यानी कि इस पर पाबंदी डालें आप, ताकि अभी औरत नहीं हुई, बालिगा भी नहीं है, लेकिन 9 और 15 साल के दरमियान कभी भी कोई बुलूग की निशानी हो गई या जो भी शराइतें, कोई शर्त से वारिद हुई तो बालिगा हो जाएगी और अब पर्दा फ़र्ज हो जाएगा, नमाज रोज़े फ़र्ज हो जाएंगे वगैरह। वरना 15 साल इस्लामी हिसाब से पूरा होते ही ये बालिगा यानी इस पर एकाम शरीयत, नमाजें वगैरह सब ये जारी हो जाएंगी, पर्दा इस पर फ़र्ज हो जाएगा। लड़का 12 साल और 15 के दरमियान बालिग होता है, आसार बुलूग ज़ाहिर हो तो, वरना फिर ये क्या 15 का होते ही ये बालिग हो गया और शरीयत इस्लाम के जो अहकाम थे फ़र्ज़, वो उस पर फ़र्ज़ वाजिब जो भी है वो हो जाएंगे अब नाफिज। और ये माँ बाप को चाहिए कि जब बच्ची 9 साल की होने लगे उसको मसाइल सिखाएं कि बालिगा होने के, ये सब समझते होंगे क्या होते हैं मसाइल, कम अभी ना समझते हो तो पर्दे के बारे में सवाल जवाब में ये सब लिखे हुए हैं, इस तरह के मसाइल के कब बालिगा और बालिग होते हैं। बाप को चाहिए बेटे को ये मसाइल जब 12 साल का होने लगे ना तो इसको समझा दें कि ये इस तरह होता है, ताकि इसको नमाज रोज़े का पता चले, वरना पता ही नहीं चलेगा इसको, बालिग हो जाएगा तो। ये है थोड़ा मतलब सेंसिटिव मसला, लेकिन हुक्म शरीयत जो अर्ज़ कर रहा हूँ इस पर ध्यान दें, तवज्जो फरमाएं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रिश्ते पार्क तक का जुलूस का तस्करा हुआ अभी माशाअल्लाह। 2006 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जुलूस का अंदाज क्या हुआ करता था।
क्या पुरानी याद ताज़ा हो गई। क्या थी, क्या याद थी? क्या यार, जवानी थी, जवानी नहीं थी लेकिन बहरहाल हिम्मत थी, ताकत थी। तकरीबन 20 साल पुराना। वो कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं था, सिक्योरिटी इशू था, उन दिनों पुलिस नजर आ रही थी। जी हाँ, था ना। सिक्योरिटी का इशू 95 के बाद से है हमारा। और निश्तर पार्क के बाद मुझे बिल्कुल रुकावट डाली गई, वो नहीं जाना। लेकिन हमारा जो सिक्योरिटी का जो मौजू था वो लाहौर वाले वाक़ये के बाद हम सिक्योरिटी हमारी टाइट हो गया, स्टार्ट हो बल्कि गई शुरू हुआ था 1995 के बाद से हमारा ये पिच चल रहा है। मगर फिर वो निश्तब पार्क वाला जो वाक़या था, ये निश्तब पार्क वाला साल का ये निश्तब पार्क वाला ही साल है। और लेकिन वो सिक्योरिटी तो हमारी चल रही थी, मगर इस वाक़ये के बाद यानी इसी साल ही निश्तब पार्क का वाक़या हुआ था। और 2 दिन पहले हमारा फैज़ान मदीना का वाक़या हुआ था 10 रबीउल अव्वल। तो ये था, इसमें अरकान शूरा वो सब सारी शूरा थी। और अल्लाह ने बचा लिया। जो डीएसपी ने आके बयान दिया था, बोलने का नहीं है ना सबके सामने जी, अल्लाह ने बचा लिया। उस टारगेट हम लोग थे, अल्लाह ने बचा लिया। पूरी शुरा थी, मैं भी था, हाजी इमरान सब थे हम लोग उसमें, अल्लाह ने बचा लिया, उसका करम हो गया। अल्लाह जब तक यानी मौत नहीं आई तो वो ज़ाहिर है कि मौत आएगी ही नहीं। जब वक्त पूरा हो जाएगा तो 1000 पर्दों में कोई छुप जाए बच नहीं सकता। मगर अभी ये उस तरफ फिर अल्लाह पा उन सब की भी मग़फ़िरत करे जो हमारे। हाँ, ज़ाहिर है कि जिसका वक्त पूरा हुआ था तो उनके साथ हुआ ये 60 शहादतें तकरीबन गालिबन। और हमारे यहाँ जो फैज़ान मदीना 2 दिन पहले जी हाँ 30 शहादतें भगदड़ मची थी ईसाई बहनों में। वो जो अल्लाह सबको बरी करे। निश्तब पार्क वाला तो जो आज जिन्होंने वो जिनके साथ ये हुआ था वाक़या, उनमें जो हैं उनको आज भी सुना है कि तकालीफ आ रही होती हैं उसकी। आपके वो भी थे ना भतीजा में, भतीजे हाजी इद्रीस, ये बेचारे फौत हो गए ना, अब थोड़ा अरसा हुआ, लेकिन एक अरसे तक वो उसकी तकलीफ उठाते रहे गालिब। हाँ, तकलीफ इनको होती थी, अंदर कुछ छरे शायद रह गए थे। अल्लाह खैर करे। जो भी इस्लामी बहनें फौत हुई, बच्चे फौत हुए, निश्तर पार्क में जो शहीद हुए, सब ज़रा जो भी ये इसमें काम आए वो आमतौर पर शहीद ही हुए। इन सब को मतलब अल्लाह पाक करी के रहमत करे, सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत करे और अल्लाह पाक इनके दर्जे बुलंद फरमाए। कई घर उजड़ गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुज़ूर, आज जो हमारे हमज़ा के सवालात में एक बात का तस्करा हुआ था कि दावत इस्लामी के शोबा कोर्सेज़, मदनी कोर्सेज़ के जो इस्लामी भाई हैं वो मार्केटों में जाकर मुख्तलिफ मसाजिद में कोर्सेज़ कराते हैं। और ख़ासकर 12वीं शरीफ के इस मुबारक महीने में अखलाक करीमा कोर्स, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिस के तहत जो है वो 3 दिन, इसी तरह 5 दिन, 7 दिन के कुल वक्ती यानी फुल टाइम भी हैं, रिहायशी कोर्स भी हैं और साथ में शॉर्ट टाइम कोर्सेज़ भी हैं। और ये मुख्तलिफ इसके मौज़ूआत भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। अगर आशिकान रसूल को ये भी पैगाम आपकी तरफ से हो कि कोर्स जो है ये मुख्तलिफ टाइमिंग्स में भी हो रहे हैं, अगर ये इस्लामी भाइयों से राब्ते में आएँ तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। माशाअल्लाह, ज़रूर ये कोर्स सबको करने चाहिए। जिनके पास गुंजाइश हो, गुंजाइश निकालनी पड़ती है, असल जज्बा हो तो गुंजाइश भी निकल आएगी। तो ये कोर्सेज नाम दिखाए जाते हैं, तो इनमें ज़रूर हिस्सा लें और अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोर्स करके उसने अखलाक की प्यारी प्यारी बातें सीखें। और इसको अगर अपनाएंगे आप तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पढ़ो दुरूद, अज सरकार आ गए, दुनिया के 2 जहाना दे सरदार आ गए। धूम है अत्तार हर सू शाह के मीलाद की,
جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا کے نعرے عشق رسول کو گرماتے ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ انہی بابرکت لمحات میں 12 ربیع الاول شریف کے پرنور دن فیضان مدینہ کراچی سے دوپہر 3 بجے مرکزی جلوس میلاد نکالا جائے گا، تو پھر آپ بھی بھرپور شرکت فرمائیں۔ اس جلوس میلاد کے مناظر انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ سیدھی ایک سوال یہ موصول ہوا ہے، یہ سوال یہ کر رہے ہیں، کل آپ نے فرمایا تھا کہ لوکی شریف حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے، لوکی کا درخت حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے، حالانکہ اس کی تو بیل ہوتی ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ جی ہاں، وہ حدیث پاک بیان تو ہوئی تھی کل، ہاں یہ حدیث پاک بیان ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوکی شریف بہت پسند فرماتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے، یہ بیضاوی شریف کے حوالے سے ہے۔ اچھا، تو اب اس کی شرح سن لیجیے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صراط الجنان جلد 8 پیج نمبر 349 پر ہے۔ یاد رہے، کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر یہ حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ یہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا، اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام آرام کرتے تھے۔ تو یوں مطلب یہ خصوصیت ہے کہ وہ درخت تھا لوکی شریف کا، اور اب مطلب یہ کہ ویسے بیل ہوتی ہے، یہ خصوصیت ان کی تھی درخت، اس لیے وہ حدیث پاک میں لفظ درخت اور قرآن میں بھی آئے نا۔ سورہ صافات آیت نمبر 146، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا۔ تو یہ مطلب پیڑ درخت کو ہی بولتے ہیں، شجر درخت، بیل یہ وہ پتلی پتلی وہ ہوتی ہے، اس پر مطلب کدو شریف لگتا ہے، تو یہ اونچی نہیں ہوتی، یہ زمین پر پھیلتی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کسی درخت سے لپٹ گئی، کوئی درخت قریب ہو تو، اس کی اللہ پاک کی حکمت ہے۔ اس میں ایک وہ چٹکلا ٹائپ کا ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ کوئی شخص گزر رہا تھا تو ایک بیری کے نیچے سے گزرا، بیر کے درخت کو بیری بولتے ہیں، ایک بیری کے نیچے سے گزرا تو ایک بیر جو تھا اس کے سر پہ آ کے لگا، یہ تھوڑا ہڑبڑایا اس نے، یار مجھے بیر لگ گیا، اور آگے بڑھا تو تربوز کی بیل دیکھی، تربوز تو بڑے بڑے تربوز بیل، اب اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیری حکمت، تیری قدرت، اگر یہ تربوز بھی درخت پر لگتے تو میرے سر پہ یہ آتا تو میں کیا کرتا۔ تو یوں بڑے بڑے جو یہ ہے نا پھل اور سبزیاں، یہ نیچے زمین پر بیل، چھوٹے چھوٹے درخت پر، اور بعض بیلیں چھوٹے درخت کو بھی ہے، انگور کی بیل ہوتی ہے، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے۔ لوکی شریف، اب میں ذرا کدو بولتے، میں کدو ہی بولتا رہا، لیکن مجھے پھر توجہ دلائی گئی کہ وہ کدو شریف کے مختلف معنی ہے، کہ لوکی تو ہے، اس کی کہنے میں کوئی شرن حرج نہیں ہے، لیکن وہ لغت میں یہ بھی لکھا ہے کہ گالی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، بیوقوف کے لیے دشنام لکھا ہے، دشنام تو گالی کو بولتے ہیں۔ تو اب مثالیں بھی میں بولتا نہیں کچھ بہرحال آگے، تو اس لیے میں نے کدو شریف کہتا تھا، اب کوشش کرتا ہوں لوکی شریف کہوں، لیکن بعض وقت ادا ہو جاتا ہے منہ سے تو غلط نہیں ہے، تو یہ لوکی شریف۔ مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
آپ نے جلوس کا بھی ابھی سنا تو جیسے 3 بجے عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ سے تقریباً کم و بیش 3 بجے تو ظہر کی نماز کے بعد تو اس میں شرکت کریں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی ظہر کی نماز بھی با جماعت ادا کرنی ہے اور عصر کی نماز بھی با جماعت ادا کرنی ہے. کئیوں کے اسلامی بھائیوں کی بعض اوقات ایسا نہ ہو کہ عصر کی جو نماز ہے وہ جماعت ان کی رہ جائے. تو ہم برے دن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی جماعت تھوڑا ہم آگے بڑھاتے ہیں تاکہ جو جلوس میں عاشقان رسول شریک ہوتے ہیں ان کو جماعت مل جائے. تو انشاءاللہ بڑے دن یعنی بدھ کے دن صرف بدھ کے دن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جماعت عصر جو ہے یہ 6:15 بجے کے آس پاس ہوگی انشاءاللہ. تو ابھی 5:45 بجے جماعت ہے لیکن صرف بدھ کے دن 6:15 بجے ہوگی عید کے دن. تو آپ ایک تو اس کا بھی اہتمام کیجئے گا اور جہاں جہاں بھی آپ چونکہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی چینل پر ہیں تو ایک ہم نے آپ کو اندازے بتایا. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پرذوق اور عشق رسول میں ڈوبا ہوا انداز تھا جلوس میلاد کا. ابھی آپ دیکھ رہے تھے 2006 کا ہم نے آپ کو منظر دیکھا. عوام تھی, گیدرنگ تھی, پیدل چلا جا رہا تھا. تو جن سے ہو سکے اپنے جلوس میں شرکت کو بھی اسی طرح کریں کہ ایک اچھے خوبصورت عشق رسول میں ڈوبے ہوئے انداز کو لے کر چلیں جلوس میلاد کے اندر. اور اللہ کرے کہ ہمیں ذوق و شوق و رونا بھی نصیب ہو جائے. کیا بات ہے مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر کہتے ہیں نا. تو یہاں مہارا اڑی کرنا اور عجیب و غریب انداز سے اپنے آپ کو لے کر چلنا اس سے خود کو مہربانی کر کے بچانے کی کوشش. اتنا خوبصورت ہے کہ عورتیں نہ ہو, غیر محرم یہ اس طرح کا کوئی سلسلہ نہ ہو, روحانیت ملے, برکتیں ملیں, ذوق ملے, شوق ملے, اللہ پاک کی رحمت نصیب ہو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت نصیب ہو جن کا میلاد منا رہے. تو یہ ہمیں اس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے جلوس میلاد میں. اور نماز کی پابندی ظہر بھی وقت پر پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ, عصر بھی وقت پر پڑھنی ہے, اور مغرب بھی یہی عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ میں آپ عصر بعد جماعت ادا کر لیں. 6:15 بجے سے ہم نے اعلان کیا جماعت پہ یہیں رکیں. دعا ہوگی ماشاءاللہ, کئی ہزاروں اسلام بھائی روزے سے ہوتے ہیں, دعا بھی ہوتی ہے, تو نعتیں ہوں گی, دعا ہوگا. تو آپ یہیں افطار بھی یہیں کریں, مغرب یہیں ادا کریں اور افطار بھی ملے گی آپ کو انشاءاللہ. اور اس کے بعد سنو تمہارا مختصر سا بیان بھی ہوتا ہے, بڑا دن ہوتا ہے اور جلوس سے واپسی ہوتی ہے تو انشاءاللہ سنو تمہارا ایک مختصر سا بیان بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو لنگر میلاد بھی پیش کیا جائے گا یہیں عالمی مدینہ وقت فیضان مدینہ میں. پھر عشاء کی جماعت ہوگی اور عشاء کی جماعت کے بعد پھر مدنی مذاکرہ ہوگا. ماشاءاللہ ضرور شرکت کیجئے گا. اور یہ مدنی مذاکرے اور یہ بیان اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ کو مدنی چینل پر بھی دکھائے جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. جلوس میلاد میں بعض لوگ جو ہے نا اچھل کود مچاتے ہیں, یہ اس سے پھر یہ نا کہ وہ مذاق بنتا ہے اور لوگوں کو مطلب بس زن کرنے کا یا ہونے کا سامان ہوتا ہے. اس لیے مہربانی کر کے سیریس چلیں گے نا آپ, جتنا ہو سکے نگاہ نیچی کر کے, انشاءاللہ اس کا لطف بھی زیادہ آئے گا اور کسی کو بولنے کا کوئی موقع بھی نہیں ملے گا, شیطان وسوسے بھی نہیں ڈالے گا. اسی طرح سنا ہے کہ اب تو میوزک بھی بعض لوگوں نے شروع کیا, اس میں تو توبہ استغفر اللہ کا رسا ہے, تو ان کو توبہ کرنی چاہیے, گناہ کے کام ہے یہ, ایسا نہ کریں. اور اسلامی بہنیں, میں جنرل اسلامی بہنیں بولتا ہوں نا, عورتیں یہ بھی جلوس میں اب تو بڑھتی جا رہی ہیں, توبہ ایسا نہ کریں. مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو سنبھالیں. اتنے ہزاروں مردوں میں آپ کی بہو بیٹیاں یار, بیوی, یہ چلے پیچھے پیچھے. واٹ از دس, کیا ہے یار, حیا کہاں گئی, اس کو واپس لائیں. شرم و حیا کریں اور ان کو بالکل پابندی ڈالیں. میری مدنی بیٹیاں اگر مجھے سن رہی ہیں تو ہرگز 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 جلوس نہ یہ لائٹنگ دیکھنے جائیں. لائٹنگ میں بھی مرد و عورت کا اختلاط مکس ہوتے ہیں اور ایک دوسروں کو دھکے بھی لگتے ہوں گے, اور بس جو بھی ہوتا ہوگا اللہ پاک گناہوں سے ہم سب کو بچائے. مہربانی کریں, لائٹنگ کو دیکھنا ہے تو مدنی چینل پر دیکھ کر گزارا کر لیں, جائیں نہیں. اپنے گھر پہ لائٹنگ جو اس کو دیکھ کر گزارا کریں, باہر نہ نکلیں, نہ جلوس میں نہ لائٹنگ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ میری باتیں مانیں گے آپ کو, انشاءاللہ دونوں جہاں میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
बहुत सारे गुनाहों से बचत हो जाएगी और बहुत सारों को गुनाहों से आप बचा लेंगे। इस तरह नाच कूद उछल कूद जो करते हैं ऐसों को भी आप इनफरादी तौर पर कोशिश करके समझाएं, जहन बनाएं इनका, ऐसा नहीं करो। हुजूर हम तो समझा रहे हैं, फिर ये बन जाता है ना, फिर सोशल मीडिया पे एक तबका बैठा हुआ, फिर ये जो रगड़ता है ना सुन्नियों को, देखो ये कर रहे हैं, तो फिर ये क्या, फिर दुनिया भर में ये जाते हैं क्लिप। अब वो वहाँ तो कोई जुलूसों का आमतौर पे तस्वुर होता भी नहीं है, तो वो इनको ये तस्वुर बनता होगा कि अच्छा ये पाकिस्तान वाले ऐसे लोग हैं, नाचते हैं 12 रबीउल अव्वल को। हालांकि नाचने वालों की तादाद बहुत थोड़ी होती है, लेकिन इनकी वजह से जो बेचारे पुरसुकून तरीके पर, पुरवकार तरीके पर इश्क रसूल में डूब कर जुलूस में, इनको कौन दिखाएगा? असल तो वो जिनको मतलब बाद शैतान वसवसे डालता है, तो वो इस तरह की चीज़ें दिखा रहे होते हैं। और इतना क्लिप निकाल के छोटा सा, तो काय को मौका देते हो यार? नहीं दो किसी को मौका। अपने जुलूस का तकद्दुस बरकरार रखें और अमन अमान के साथ, और नारे भी बाज जज्बाती जवान उछल कर जो नारे लगाते हैं, ये भी सुन ले वो भी सुन ले, ये नहीं यार, ऐसा नहीं करें। अपनी बारात को क्यों खराब करते हैं यार? अब जो अपने दावत इस्लामी ने जो आपको नारे दिए, ये इतनी बड़ी लिस्ट है, अब याद कर लो तो नारों के हाफिज हो जाओगे आप। इतने नारे दिए वसाइल बख्शिश वगैरह भी, यार उनको याद कर लो अभी, ये भी सुन ले वो भी सुन ले, ये भी ठा वो भी ठा। काय को करते हैं यार? ऐसे कौन ठा होगा यार? आपको कहीं वो ठा कर देगा कोई, तो अल्लाह ना करे। तो इसलिए मेहरबानी करके वो नारे लगाएं जिसमें सवाब मिले आपको, जिसमें नेकी की दावत हो, इश्क रसूल दिल में बढ़े। सरकार की आमद, ये कितना प्यारा नारा है, आका की आमद कितना प्यारा नारा है। बच्चा बोल रहा है, फिर आप ठा करेंगे तो बच्चा भी ठा करेगा, तो मतलब बात खराब होती चली जाएगी। तो इसलिए मेहरबानी करें, मेरे दर्द को समझें। हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि ऐसा नारा ना लगाएं जिससे किसी को मौका मिले, इश्तियाल पैदा हो और हंगामे हो, मारा मारी हो। अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने इत्मीनान से सरकार की मोहब्बत का दर्स देते हुए, इश्क रसूल का जाम पीकर झूमते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। जो आपने बयान किया, समझाया, अल्लाह करे समझ में आ जाए। और वो लोग सुन रहे हो तो आएगा ना नाचने वाले। अब एक तबका वो काम जो कि खिलाफ शरा है, गैर अखलाकी है, वो जुलूस के नाम पर या मिलाद के महफिल के नाम पर अगर कोई करता है, तो अगर कोई करता है तो अब इसको बुनियाद बनाकर इस अहम और मुक़द्दस काम को गलत कहना और लोगों को इस मामले में गलत, उनके जहनों में गलत फहमी पैदा करना, इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं? ज़्यादा कि जो जानबूझ ऐसा करता है, उसको पता है कि सारे जुलूस में ऐसा नहीं होता। बाज होते हैं नौजवान जज्बाती, तो वैसी हरकत कर गुजरते हैं। तो इसको बुनियाद बनाकर सारे, अब मस्जिद में चप्पल चोरी हो जाए, चोरी हराम है, किसी ने चप्पल चोरी की तो आप बोलो कि मस्जिद गलत है, मस्जिद गलत है, वहाँ तो चोरियाँ होती हैं, मस्जिद में मत जाया करो, जहाँ गुनाह होते हो वहाँ से दूर रहा करो, तो कौन मानेगा आपकी बात यार? ये बात तो नहीं मानेंगे लोग। लेकिन जुलूस वाली बात ऐसी है कि कुछ इस तरह के मनाजिर दिखा कर बोलेंगे देखो ये ऐसा करते हैं, तो ये क्या वो शैतान है ना, बात आ जाएगी जहन में कि हाँ भाई ये ऐसा होता है। बाहर मुल्कों को क्या पता है कि हम कैसे करते हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके किसी मुसलमान को मतलब वसवसे ना आए, हरकतों से हम बाज रहें। और जो ऐसा करते हैं, अगर ये नादानी में करते हैं तो तौबा कर लें, और कसदन करते हैं तब भी तौबा की दावत है कि ऐसा क्यों करते हैं, हम क्या गलत करते हैं। जो सरकार की आमद मरहबा कहते हैं, इसमें क्या गलत करते हैं? शरन तो कोई भी गलती नहीं है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ारों उलमा भी ये कर रहे हैं काम, सब कैसे गलत हो जाएंगे? तो बगैर दलील के किसी शय को गलत कहा भी नहीं जा सकता, हर दलील दुरुस्त भी नहीं होती। तो इसलिए वो बहुत कुछ अर्ज किया। दूसरा, नियाज लुटाने वाले जो हैं वो भी मेहरबानी करके मतलब ऐसा ना करें कि ये भी देखने वाले मजाक उड़ाते होंगे कि देखो ये लाखों करोड़ों रुपए का लोगों का चंदा जो लोगों के कदमों में डाल रहे हैं, कितने केले, कितनी मौसम्बियाँ, कितने सेब, कितनी चॉकलेट, टाफियाँ पाँव तले
कुचल जाती हैं, किसी काम की नहीं होती। और बेअदबी अलग, रिस्क की बेहुरमती, शायद पक्के हुए वो मीठे चावल और इस तरह के भी मेरा ख्याल है शायद बांटते हैं या फेंकते भी हो तो कोई कुछ नहीं कह सकते, शापर में, प्लास्टिक की थैली में। ये तो हाथ में आएगा भी तो प्रेशर से आएगा तो ये फटेगा, बाज़ बार फट जाता होगा वो थैली और बिखर जाती होगी। तो ये कितनी बेअदबी है और लोगों के पैसों का ज़िया। तो इस तरह जानबूझकर अपना माल ज़ाया करने की शरन भी इजाज़त नहीं है। बस इनका भी नहीं होता ना, आमतौर होता होगा, चंदे का ही होता होगा। तो लोगों ने ये थोड़ी इसलिए आपको दिया कि लोगों के कदमों में डालो, इसलिए दिया कि लोगों के पेट में डालो। पेट का रास्ता ये है, मुंह, पाँव नहीं है। तो इसलिए मेहरबानी करके इसको भी समझे। सारे जितने भी लंगर लुटाते हैं, तो मैंने वो तरीक़ाकार भी हमने दिया हुआ है कि हर जुलूस मीलाद के साथ एक मेगाफोन रखा जाए। अच्छा, मेगाफोन ये जुलूस मीलाद के लिए जो चंदा किया हो, जैसे चरागांव का, इसमें से नहीं ले सकते, जो इसमें उर्फ नहीं है अभी, मामूली पहली बार हमने ये ऐलान किया है अभी। तो ये अलग से इसका या तो किसी से दरख्वास्त करके उनसे हासिल किया है, अपने 2-4 ईसाई भाई मिल के थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो करोड़ों रुपए का तो होगा नहीं, 10-5 हज़ार का आता होगा मेगाफोन, इतना कीमती तो होगा नहीं, तो वो ले लें। और मैंने जुमले भी दिए, अब सारे मुझे इस वक्त तो याद नहीं है, ऐसे मौके दे देते हैं ना फ़ौरन। तो मैं मतलब ये नहीं कि उसमें लिखे हुए जो है ना वो जुमले दिए हैं। तो इसका वो अब तो शायद वायरल कल होगा, मेरा ख्याल वायरल इंशाअल्लाह। हाँ, कल वायरल होगा। हर जुलूस मिलाद में इस्लामी भाइयों की टीम हो, जितने भी जुलूस निकलते हैं एक टीम हो जिसके पास चंद थैले और एक मेगाफोन हो। अगर कहीं ट्रक वगैरह पर से माज़ अल्लाह नियाज फेंकी जा रही हो तो वहाँ नर्म लहजे में इस तरह ऐलान किया जाए, ए आशिकाने मीलाद, नियाज ज़ाय होने से बचाइए और ऊपर से फेंकने के बजाय नरमी से हाथों में दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा से फरमाया, आयशा, अच्छी चीज़ का एहतराम करो कि यह चीज़ यानी रोटी जिस किसी कौम से भागी है लौट कर नहीं आई। रिस्क में, रिस्क ज़मीन पर गिरेगा, अगर गिरता है, अगर कहीं लुटाया जा रहा हो तो अल्लाह करे, अब ये ज़ाहिर सारे यहाँ मौजूद नहीं है, सब सुनेंगे, ये ज़रूरी नहीं, सुने तो अमल करें, ये ज़रूरी नहीं। मज़ा बहुत आता ना लुटाने में, तो मज़ा ना लें बल्कि सवाब लें। तो जो भी ज़मीन पर रिस्क गिरे, आपके पास थैले मौजूद हो, थैले भी पल्ले से लेने हैं या किसी को ख़ास ये कह कर के हम इसलिए थैले हमको लेने, थैले महंगे नहीं होंगे लेकिन बहरहाल बगैर पैसों के भी नहीं मिलेंगे, तो ये थैले ले, दो चार साथ में हो। तो उससे क्या करना है कि जो ज़मीन पर गिरा उसको उठाकर एक थैले में जमा करते रहें और जो सही सलामत है वो उसको एक थैले में डालें, जो कुचले हुए हैं पाँव से वो भी उठा लें, सफाई के जुलूस में चलने वालों को इससे थोड़ा राहत मिलती है। तो ये मतलब उठा लें, ये अलग थैले में हो जो अब कुचल गए, खाने के काबिल नहीं है, तो ये 2 थैले में हो। अब इसमें थोड़ा मसले को ज़हन में रखना होगा, समझ लीजिए, गौर से समझिए कि जुलूस में लंगर फेंका जा रहा है, लुटाया जा रहा है, तो उस जो जम इकट्ठा होता है लोगों का, उसमें जो ज़मीन पर से मिला वो तो जिसको मिला, जिसने उठाया उसका हो गया। अलबत्ता अगर वो किसी ने उस पर कब्जा कर लिया था फिर उससे गिर गया और आपने देख लिया है, तो अब ये आप नहीं ले सकते, उठाकर बेशक उसी को दे दें कि उसका वही मालिक, लेकिन ऐसा कम होता होगा। तो बहरहाल ये जिसने उठाया अगर ये किसी का नहीं है तो अब ये जो उठाए उसका। और दूसरा है कि ट्रक जिसे गुजर गया, तो अब गुजरने के बाद जो ज़मीन पर मिला
फल बिस्कुट वगैरह, तो वो भी उठाते जाएं, उठा कर ये आमतौर पे लुकता होता है कि किसी का अब है पता नहीं गिर गया, बच्चे का बड़े का क्या है, तो लुकते में बच्चा बड़ा एक ही होता है मसला। तो ये आप अलग थैले में इसको लें, इसलिए चंद थैले बताए ना। अच्छा, अब जो आपने ये लुकते वाला जमा किया, अच्छा उसमें आपको बेज मिलेंगे ज़मीन पर, नाले पाक प्लास्टिक के, मेटल के, ये भी ज़मीन पर बाजू का तशरीफ़ लाते हैं, आ जाते हैं, पिन खुल जाती है, तो इस तरह के भी मिलेंगे, तो ये भी उठा लें और चूम कर इसको भी अपने पास जमा करें। और ये तो हैं ही, मतलब है कि लुकता ही है, चाहे मजमे में मिले चाहे अलग से मिले, क्योंकि ये लुटाए नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझ अब भी है कि ये फेंकने की चीज़ें अब भी इनको नहीं, लेकिन ये अनाज और ये अल्लाह करेगा इसमें भी समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो अब ये कि ये चीज़ें जो लुकता हो गई, अब वैसे तो लुकते के मसाइल हैं कि ऐलान करना होता है, इसका मालिक तलाशना होता है, तो अब इसमें दो सूरतें उठाने की। एक तो ये कि इसलिए उठाया, अरे वाह मुझे मिल गया, अपने लिए उठाया, है ना, अपने लिए उठाया, इसका मसला दूसरा है। और जो वैसे ही उठा लिया कि जिसका उसको दे देंगे या अब ये कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, बहरहाल अपनी ज़ात के लिए नहीं उठाया, तो इसका मसला अलग है। अब ये कि दोनों तरह के, क्योंकि यहाँ रश और हज़ारों की तादाद, मालिक तलाश करना इसका ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल है इन चीज़ों का। तो इसलिए ऐसे में क्या है कि जो अपनी ज़ात के लिए जिसने उठाया, वो तो उसको किसी शरई फ़कीर को देना होगा, दे दे, जिसको ज़कात दी जा सकती है मसलन उसको दे दे। अच्छा, बाकी जो सामान है उसमें यह है कि जो अपने लिए नहीं उठाया था, तो जिसने उठाया अगर खुद फ़कीर शरई है तो खुद रख ले चाहे तो, या किसी फ़कीर शरई को दे दे, मस्जिद मदरसे के चंदे में भी दिया जा सकता है वो। तो ये सूरतें हैं। अच्छा, अब इनमें भी ये गुंजाइश मैं आपको बता दूं कि जैसे ये जो भी इस तरह के मिले हुए हैं, ये सब किसी शरई फ़कीर को इशारा दे दें कि उसकी मिल्क में आ जाए, वो मालिक बन जाए, कब्जा कर ले। अब ये उसकी सवाबदीद पर है कि वो आपको भी दे, इसको भी दे, बांटे या घर ले जाए, ये भी सूरत हो सकती है। अगर वही बंटवाना है तो ये भी शायद बांटते, तो ये सूरत। अच्छा, अब फ़कीर शरई किसको कहते हैं ये भी नोट कर लें। वो शख्स जिसके पास अपनी बुनियादी ज़रूरियात से ज़ायद 52.5 तोले यानी 612.36 ग्राम चांदी या इसकी रकम या इतनी रकम का माल ना हो, ऐसा शख्स शरअन फ़कीर है। तफसीली मालूमात के लिए मकतबतुल मदीना की किताब नमाज के अहकाम सफ़ा नंबर 362 पढ़ लीजिए। ये शरीफ फ़कीर वगैरह मिस्किन की तारीफ़ भी लिखी है। आमतौर पर तो मिस्किन फ़कीर एक ही बोलने, लेकिन फ़र्क है दोनों में, अलग अलग तारीफ़ात हैं। ये मालूमात के लिए अपनी ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए। तो ये मुख्तसर सी दरख्वास्तें अर्ज़ की हैं और इंशाअल्लाह ये जब कल अल्लाह करेगा वायरल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो भी सुन रहे हैं और मेरी मदनी बेटियां सुन रही हैं, मुझे अभी से नियत करेंगे इसको वायरल करना है। देखो, मैं उनमें से नहीं हूँ जो मिन्नतें करते हैं कि ये शेयर कर दो कि मेरा वो थोड़ा लाइक्स बढ़ जाएंगे। ये लाइक्स ढूंढना ही नहीं आता मुझे। मैं खुदा की कसम तबलीग के लिए कि नेकी की दावत, ये अल्लाह करेगा तो इस तरह ये अगर आप सबने तय कर लिया ना कि हम इसको अपने अपने ग्रुप में वायरल करेंगे, तो ऐसों तक भी इंशाअल्लाहुल करीम पहुँचेगा जो लुटाते हैं। तो कई खौफ खुदा की वजह से डर जाएंगे और इस बात से तौबा कर लेंगे और आइंदा बचेंगे। ये फ़ायदा होगा, दुनिया भर में जाएगा जहाँ इस तरह के जुलूस नहीं होते जिसमें लुटाया जाए, उनको भी पता चलेगा कि असल क्या है और ये जो करते हैं वो गलत करते हैं और ये जो इनके ही जो बड़े हैं ये इनसे मना करते हैं इनको। तो ये जो करते हैं ये इनकी अपनी पर्सनल मैटर है, ये कोई हिस्सा नहीं है जश्न मिलादत का और जुलूस मिलाद का। तो जो करते हैं वो गलत करते हैं, तो नमाज़ों का और कहते रहते हैं
اب لیکن نہیں پڑھتے ہوں گے، بے شمار لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے، کیا کیا جائے اس کا؟ ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے. تو جو بھی ٹرکوں پر لٹاتے ہیں کرتے ہیں، دیکھو اس میں تاکید ہے، بھائی صاحب بڑے بھائی یہ کرنا ہے، مانتا نہیں ہے گناہگار ہوتا ہے. یہ انداز دعوت اسلامی والوں کا نہیں ہے. آپ نے لجاجت کے ساتھ محنت کرنی ہے، سمجھانا نہیں آتا تو چپ رہنا ہے، ورنہ آپ ہڑاوڑی کریں گے تو پھر وہ منہ پہ آپ کے سیب مار دے گا تو لڑائی ہو جائے گی، مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. تو ویسے بھی ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اس لیے نادانی نہیں کرنی، نرمی سے پیار سے سمجھانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماہ ربیع الاول شریف میں دینی تحریکوں کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور اسلام بھائی اور اسلام بہنیں جو ہیں وہ اپنی نیتیں بھی شعبے اصلاح اعمال کو بھیج رہے ہیں. اب تک جو ہمیں نیتیں ملی ہیں ماہ ربیع الاول شریف میں جو 12 روزے رکھیں گے اس کی تعداد ہے 9024 9024. 7 روزے رکھنے والوں کی نیتیں ملی ہیں 8729 8729. 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں ہیں 21543 21543. اور یہ ٹوٹل نیتیں 39296. روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے بھی خوش نصیب ہیں. جی ہاں الحمدللہ اب تک جو ہمیں نیتیں ملی وہ 1,05,212 1,05,212. آپ بھی ان تحریکوں میں شامل ہونا چاہیں تو اس نمبر پر آپ اپنی نیتیں بھی لکھوا سکتے ہیں. 23 اگست 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، دھول مٹی میں مسواک کو لٹا کر رکھنے سے کس نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے؟ جواب، عقل ضائع ہونے کا. سوال نمبر 2، حدیث پاک کے مطابق لوکی شریف کون سے نبی علیہ السلام کا درخت ہے؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کا. سوال نمبر 3، پرہیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر پرہیز کے دوا استعمال کرنے کی کیا مثال دی ہے؟ جواب، جیسے بغیر وضو کے نماز. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام ابرار اتاری
اتاری فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان، محمد اکرم ملتان پنجاب پاکستان، محمد ذیشان اتاری قصور پنجاب پاکستان، محمد ثاقب رضا منڈی بہاؤدین پنجاب پاکستان، محمد شان جاوید اتاری او شریف بہاولپور پنجاب پاکستان، محمد یوسف اتاری مدنی بن غلام فرید اتاری ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا پاکستان، غلام یاسین اتاری مظفر گڑھ پنجاب پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام غلام یاسین اتاری مظفر گڑھ پنجاب پاکستان۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مدنی مذاکرے سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، فضائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، اللہ پاک کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے لوکی شریف کا درخت کب اگایا گیا جس کے سائے میں آپ آرام فرماتے تھے؟ سوال نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جو امامہ باندھا اس کے کتنے شملے تھے؟ سوال نمبر 3، خریداری کرتے وقت بارگیننگ کرنا سنت ہے لیکن کس موقع پر بارگیننگ نہیں کرنی چاہیے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام و نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مرحبا 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 مرحبا